السلام علیکم BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ نریندر مودی 10 مئی کو پہنچیں گے تلنگانہ، سکندرآباد میں بڑا جلسہ متوقع، تیاریوں میں تیزی۔ تلنگانہ BJP صدر این رام چندر راؤ کی پریڈ گراؤنڈ ریلی کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ ہیلپ ڈیسک سینٹر سے کریں استفادہ، SIR کو لے کر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی عوام سے اپیل۔ مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹرز پر دستاویزات کی جانچ اور رہنمائی کا عمل تیز۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے عازمین حج کے 10 قافلوں کی ہوئی روانگی، 4000 سے زائد عازمین مکہ مکرمہ پہنچیں گے، مشائقین، عازم اور علماء نے کیا مخاطب۔ چیف منسٹر کے قافلے نے معمول کی ٹریفک کے دوران ہی کیا سفر، شمشاباد ایئرپورٹ سے واپسی کے دوران ٹریفک کو روکا نہیں گیا، چیف منسٹر کی ہدایت پر عمل۔ BRS رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی کے ریمارکس پر تنازع، ڈرگ ٹیسٹ کروانے ریونت ریڈی اور بنڈی سنجے کو چیلنج، BJP کارکنوں نے کوشک ریڈی کے آفس پر مچائی توڑ پھوڑ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 10 مئی کو سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی مجوزہ ریلی کو تاریخی بنانے کے لیے ریاست بھر میں تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں BJP تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے تارناکہ میں دیوار نوسی مہم میں حصہ لیتے ہوئے پارٹی کے انتخابی نشان کمل کی پینٹنگ کی اور عوام سے بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت کی اپیل کی۔ اس موقع پر سابق میئر بنڈی کارتیکا ریڈی سمیت پارٹی کے کئی قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا کہ تیسری بار اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ پہلا دورہ تلنگانہ ہوگا اور ریاست بھر میں پارٹی کارکنان پوسٹرز، فلیکسیز، بینرز اور تشہیری مہم کے ذریعے عوام کو متحرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عالمی معاشی چیلنجز کے باوجود مودی کی قیادت میں ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی شکست کے بعد جمہوری فیصلوں پر سوال اٹھانے کے بجائے انہیں عوام مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مجلس کی جانب سے قائم کردہ SIR ہیلپ ڈیسک سینٹر سے بھرپور استفادہ کریں اور اپنے اہل خانہ کی میپنگ جلد مکمل کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ SIR کی اہمیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف ووٹ ڈالنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ غیر ضروری طور پر اسے شہریت کے معاملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اویسی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ بروقت دستاویزات اور تفصیلات کی جانچ مکمل کر کے کسی بھی ممکنہ دشواری سے بچیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں قائم ہیلپ ڈیسک سینٹرز پر عوام کی رہنمائی اور سہولت کے لیے کارکنان موجود ہیں، تاکہ ہر شہری اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بیدار اور محتاط رہ سکیں۔ اپیل کر رہا ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں SIR کا جو ہیلپ ڈیسک سینٹر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، میری آپ تمام لوگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت اپیل ہے کہ آپ SIR میں اپنی میپنگ کروائیے اور خاص طور سے نام کو صحیح لکھیے، تاکہ جب SIR شروع ہوگا، لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جون کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا، تو آپ کو جو سہولت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس سے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ آ کر اپنے ناموں کی میپنگ کروائیے، اور جس کا نام 2002 کی لسٹ میں نہیں ہے اور اگر ان کے والد والدہ یا دادا دادی نانا نانی سے میپنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اپنا ڈاکیومنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کی بھی سہولت سیوا میں رکھی گئی ہے۔ تو وقت کم ہے، ذرا احتیاط سے کام لیجیے اور پورا دلچسپی لیجیے اس میں۔ یہ صرف ووٹر لسٹ میں نام ڈالنا نہیں ہے، بلکہ غیر ضروری طور پر اس کو شہریت سے، سٹیزنشپ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دارالسلام پر یا جہاں کے مجلس کے SIR کے ہیلپ ڈیسک کے وہاں پر جا کر جو ہم نے ایپ کریٹ کیا ہے، ایپ بنایا ہے، جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ بھی ہے، 2024 کی ووٹر لسٹ ہے،
اور ECI کے ویب سائٹ کی ووٹر لسٹ ہے. اس سے آسانی سے آپ کی میپنگ ہو جائے گی اور اس فارم میں جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اس کا بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تاکہ جب BLO آپ کو انیمریشن فارم لا کے دیں گے، جو فارم مجلس آپ کو دے رہی ہے اسی کو آپ صحیح طریقے سے فل کر دیجئے اور اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. تلنگانہ حج کمیٹی سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے. 7 مئی تک جملہ 10 قافلے حج کیمپ حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہو چکے ہیں. جملہ 4000 سے زائد عازمین کی روانگی عمل میں آ چکی ہے اور یہ لوگ مکہ مکرمہ بخیر و عافیت پہنچ چکے ہیں اور وہاں عبادت اور دعاؤں میں مصروف بھی ہیں. عازمین حج کو وداع کرنے کے موقع پر مختلف خانقاہوں کے ذمہ داران، درگاہوں کے سجادہ نشین اور علماء کرام وغیرہ بھی موجود تھے. ان تمام نے عازمین حج کو مخاطب بھی کیا اور انہیں مناسک حج کے دوران اختیار کرنے والی احتیاط کے تعلق سے واقف کروایا اور کہا کہ وہ ہر ممکن احتیاط کے ساتھ خالص عبادت میں مصروف رہیں. علماء کرام اور مشائخین نے عازمین حج کی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. حج ہاؤس نامپلی میں صدر نشین حج کمیٹی مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کی نگرانی میں عازمین حج کے لیے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور عازمین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. عازمین نے بھی حج کمیٹی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر اے ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزیر شہری و ترقیاتی مسٹر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کرتے ہوئے حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کو منظوری دینے کی درخواست کی. انہوں نے کہا کہ میٹرو کے مرحلے دوم کے لیے 7 راہداریوں پر مشتمل ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے. ریونت ریڈی سے منوہر لال کھٹر میں میٹرو ریل کے مرحلے دوم کے تعلق سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیف منسٹر نے کہا کہ حیدرآباد شہر تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جبکہ شہر میں مسافروں کی سہولت کے لیے میٹرو کو مزید توسیع دینے کی ضرورت ہے. چیف منسٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ حیدرآباد میٹرو ریل کے مرحلے دوم اور مرحلے سوم کو آگے بڑھانے کے لیے L&T کمپنی سے میٹرو ریل کا پہلا مرحلہ مکمل طور پر حاصل کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلا مرحلہ مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے مرحلہ دوم اور مرحلہ سوم کی توسیع کے کام آسان ہوں گے. چیف منسٹر نے بھارت فیوچر سٹی کے تعلق سے بھی مرکزی وزیر سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پیدا کیے بغیر ریگولر ٹریفک کے درمیان ہی سفر کیا اور پولیس کی جانب سے ان کے قافلے کو گزرنے کے لیے ٹریفک کو روکا نہیں گیا تھا اور نہ ہی کوئی خلل پیدا کیا گیا. چیف منسٹر نے ایک دن قبل ہی پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ ان کے قافلے کے لیے سڑکوں پر خصوصی انتظامات نہ کیے جائیں اور نہ ہی ٹریفک کو روکا جائے، کیونکہ اس سے عوام کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کسی طرح کے خصوصی انتظامات نہ کرنے کی پولیس کو ہدایت بھی دی تھی. چیف منسٹر آج اپنا دورہ دہلی مکمل کرنے کے بعد شہر واپس ہوئے. شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے واپسی کے دوران چیف منسٹر کے قافلے نے معمول کی ٹریفک کے دوران ہی سفر کیا. عام ٹریفک کے گزرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا تھا اور چیف منسٹر کے قافلے نے بھی دوسری لین سے ٹریفک کے درمیان ہی سفر کیا. تلنگانہ کے وزیر وویک وینکٹا سوامی نے اسرائیلی وفد کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست کے نوجوانوں کے لیے بیرون ملک روزگار کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا. ماسب ٹینک میں تلنگانہ ORSS مین پاور کمپنی لمیٹڈ کے زیر اہتمام ہونے والے اس اجلاس میں خاص طور پر اسرائیل کے تعمیراتی شعبے میں روزگار کے امکانات پر گفتگو کی گئی. حکام کے مطابق نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن انٹرنیشنل اور دیگر اداروں کے اشتراک سے نوجوانوں کو سیرامک ٹولنگ، پلاسٹرنگ، بلاک مینوفیکچرنگ اور ڈرائی وال انسٹالیشن جیسے شعبوں میں بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جا رہی ہے. اسرائیلی وفد نے تقریباً 1200 ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ظاہر کی ہے، جس کے پیش نظر نومبر 2025 میں پری اسکل ٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں 4247 امیدواروں نے حصہ لیا اور 2059 امیدوار کامیاب قرار دیے. اب 5 مئی سے 10 مئی 2026 تک 1200 منتخب امیدواروں کے فائنل اسکل اسائنمنٹ جاری ہیں. اجلاس میں مستقبل میں مزید روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر ہری چندن، ڈائریکٹر کانتی ویسلی اور ٹام کوم کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے.
फार्मा सिटी में क्या हो रहा है के उन्वान से हैदराबाद बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनाक़दा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के कविता ने एहतजाजी किसानों और मुतासरीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और मुतालबा किया है कि फार्मा सिटी के लिए हासिल की गई ज़मीनें फौरी तौर पर किसानों को वापस की जाएं। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी के नाम पर गरीबों और कबायलियों की ज़मीनें छीनने की कोशिशें नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि ज़मीनों से महरूम होने वाले किसानों के मुस्तक़बिल और रोज़गार का क्या होगा। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत 30,000 एकड़ अराजी बड़ी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी कर रही है, जबकि मुतासरा अवाम के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि काबीना इजलासों में किसानों की मुश्किलात का एतराफ़ होने के बावजूद हुकूमत अवाम से हक़ाइक़ छुपा रही है, जबकि खरीदारी मराकज़ पर किसान फसलों के ढेरों के पास जाने गंवा रहे हैं। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना रक्षणा सेना किसानों और कबायलियों की इस तहरीक में सफ़े अव्वल में रहेगी और इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेगी। నేను మాత్రం ఒక మాట మీ అందరితో చెప్పదలిచిన ఆనాడు 13,000 ఎకరాలతో ప్రారంభమైనటువంటిది ఇవాళ 30,000 ఎకరాలు కూడా నేను అక్వైర్ చేస్తా అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పే ధైర్యం చేస్తున్నాను. ఒక కొత్త నగరాన్ని నిర్మించాలి కాబట్టి నేను ఒక ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేస్తా అని మొదలు 3 మండలాలతో ఉండే కందుకూరు, యాచారం, కడతాల్లో వచ్చినటువంటిది ఇప్పుడు అది పెరిగింది. మహేశ్వరము, ఇబ్రహీంపట్నము, పార్ట్ ఆఫ్ మంచాలు, ఆమన్గలు, మాడుగుల దాకా పోయింది. మొత్తం కలిపి 30,000 ఎకరాల భూమిని కూడా సేకరించాలనే ఉద్దేశం. ఓకే సరే సేకరిస్తాం, మీరు ఏదో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారా అని అనుకుందాం ఒక మాట. మరి మా పేదోళ్ళకి ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ చెప్తలేరు. ఎక్కడన్నా కనీసం మీరు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, మీకు ఇక్కడ స్కూల్ కడతాము, ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కడతాము, కొన్ని మీరు ఉన్న కాడ మీరు ఉండండి, మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంకో కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్తలేరు. ఏం చెప్తున్నారు, తీసుకొని బిట్లు చేసి ఈ కంపెనీకి ఇన్ని వందల ఎకరాలు ఇస్తాము, ఆ కంపెనీకి అన్ని వందల ఎకరాలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. तेलंगाना में बीआरएस की रुकनी असम्बली पी कौशिक रेड्डी के रिमार्क्स पर तनाज़ा पैदा हो गया है और इन्हें बीजेपी कारकुनों की बरहमी का भी सामना करना पड़ा है। बीआरएस रुकनी असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने एक बयान देते हुए कहा कि बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव मंशियात का टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर व बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय भी ऐसा टेस्ट करवाने तैयार हैं? कौशिक रेड्डी ने मुबैना तौर पर दावा किया कि नशीली अद्वियात के इस्तेमाल से ही बंडी संजय कुमार के बाल कम हो गए हैं। बीजेपी कारकुन इस रिमार्क्स पर बरहम हो गए हैं और उन्होंने करीमनगर में रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी के दफ्तर पर हमला करते हुए काफी तोड़फोड़ मचाई। कौशिक रेड्डी के रिमार्क्स पर इन कारकुनों ने हंगामा किया और कौशिक रेड्डी की कार को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी को इनके दफ्तर ही में बंद कर दिया था और बीजेपी कारकुनों को मुंतशिर कर दिया था। इसके बाद कुछ बीआरएस कारकुन पंडित संजय के दफ्तर की सिमत बढ़ते हुए दिखाई दिए, तहम पुलिस ने इन्हें भी रोक दिया और वहां इजाफी पुलिस फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया। पुलिस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और चौकसी बढ़ती जा रही है। ఇలా మేము కూడా అనొచ్చు కదా బండి సంజయ్ గారు, ఇలా తంబాకు తినుకుంటూ దాంట్లో డ్రగ్స్ మిక్స్ చేసుకొని తంబాకు తింటేనే మీకు ఎంటికలన్నీ ఊసిపోయిన సైడ్ ఎఫెక్ట్ కి గుండు అందుకే అయినరని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. మరి మీకు కూడా డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయాలి. डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना मिस्टर सीवी आनंद ने आज ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक और हैदराबाद के 4 कमिश्नरेट्स के ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नरान के साथ एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़द करते हुए ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने और रुकावटों से पाक करने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। डीजीपी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक निज़ाम को रुकावटों से पाक बनाने की हिदायत दी है और इसी सिलसिले में ट्रैफिक अहदेदारों के साथ गौर ख़ौस किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को खुद इनके अपने काफिले के लिए कोई खुसूसी इंतजाम ना करने और ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने की हिदायत दी है। डीजीपी ने कहा कि बहुत जल्द एक रोड सेफ्टी ब्यूरो सिस्टम शुरू किया जाएगा ताकि सड़क हादसात की रोकथाम में मदद मिल सके।
तेलंगाना भर में दर्जे हरारत में खतरे कमी के बाद अवाम को गर्मी की शिद्दत से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। ताहम हैदराबाद में गर्मी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में भी दर्जे हरारत में कमी आई है। ताहम रुतूबत में इजाफे की वजह से अवाम को गर्मी की शिद्दत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। रियासत के कई अजला में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में तकरीबन 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। निजामाबाद, आदिलाबाद और हनमकुंडा में दर्जे हरारत कम हुआ है। हैदराबाद में हयात नगर में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री और राजेंद्र नगर में 37 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। हैदराबाद के हुदूद में रुतूबत में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में अवाम में गर्मी की शिद्दत का एहसास बरकरार है। शदीद गर्मी की वजह से अब लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। अवाम में ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। हैदराबाद में सोशल मीडिया पर खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करते हुए AI से तैयार करदा फर्जी वीडियोस पोस्ट करने के इल्जाम में 27 साला जोमेटो डिलीवरी बॉय मोहम्मद अबू बकर अली तबस्सुम को काला पत्थर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मिलारदेवपल्ली के शास्त्रीपुरम इलाके के रहने वाले मुलजिम ने इंस्टाग्राम पर ऐसी गुमराहकुन वीडियोस पोस्ट की जिनमें वो खुद को पुलिस अहलकार के रूप में दिखाते हुए असला की नुमाइश कर रहा था ताकि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हासिल किए जा सकें। हुक्काम का कहना है कि AI से तैयार करदा इन वीडियोस ने अवाम में खौफ व हिरास और गलत फहमियां पैदा करने का खदशा था। पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन जब्त करते हुए भारतीय न्याय संस्था के दफा 205 और IT एक्ट के दफा 66 और 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि गैर मुसद्दिक़ा या गुमराहकुन मवाद पर यकीन ना रख करें और किसी भी मुश्तबा पोस्ट की फौरी इत्तला साइबर क्राइम हुक्काम या करीबी पुलिस स्टेशन को दे। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अली तबस्सुम है। फादर का नाम मोहम्मद हुसामुद्दीन अली है। मैं शास्त्रीपुरम में रहता हूँ, डिलीवरी का काम करता हूँ। एक हफ्ता पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील डाला था अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। एडिट करके पुलिस यूनिफॉर्म और तलवार डाला था, जो कि गलत है। आप लोग भी ऐसा मत करिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। और मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर सर से माफ़ी मांगता हूँ और तेलंगाना पुलिस से माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा नहीं करता। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक वाक़े में एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई जब एक लॉरी ने इसे रोन दिया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला कार्मिक मोहम्मद लतीफ़ टेन शेड का सामान हासिल करने के लिए मेदक से मुशीराबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक कंपनी में अपना सामान हासिल करने आया था कि एक लॉरी अचानक कार की गेट तोड़कर तेज़ रफ्तारी से अंदर दाखिल हो गई और इस लॉरी ने कार्मिक मोहम्मद लतीफ़ को रौंद दिया। इस वाक़े में मोहम्मद लतीफ़ की मौत वाक़े पर ही हो गई। ये सारा वाक़या CCTV फुटेज में कैद हो गया। इस लॉरी ड्राइवर की लापरवाही वाज़े नज़र आ रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और इसने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। कहा गया है कि मोहम्मद लतीफ़ की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना में मंशियात की फ़रोख्त खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और ताज़ा कार्रवाई में 3 IT मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है जो इस तिजारत का हिस्सा बने हुए थे। एक्साइज टास्क फोर्स टीम ने 3 IT मुलाजिमीन को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 44.7 ग्राम नशीली अद्वियात को जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने अपनी मुलाजिमत छोड़कर बेंगलुरु से मंशियात हासिल करने और इसे फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया है। एक और IT मुलाजिम ने इस तिजारत में सरमायाकारी की थी ताकि इजाफी नफ़ा हासिल किया जा सके। तीसरा मुलाजिम मंशियात खरीदते पकड़ा गया है। अहदेदारों ने कहा कि मुलजिमीन बेंगलुरु से नशीली अद्वियात 2000 रुपये फ़ी ग्राम हासिल कर रहे थे और हैदराबाद में इसे 8 ता 10,000 रुपये फ़ी ग्राम फरोख्त किया कर रहे थे। हयात नगर में धावा करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया और हयात नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद शहर में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद नार्कोटिक्स व इन्फोर्समेंट विंग टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस ने अचानक मेडिकल ड्रग टेस्ट मुहिम चलाई।
जिसमें रॉडी शीटर्स, शरपसंद अनासिर में मंशियात के आदी अफराद समेत 204 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें 87 अफराद मंशियात के इस्तेमाल में मुस्बित पाए गए। ये खुसूसी मुहिम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल केयर में डॉक्टर्स की ताउन से अंजाम दिया गया। गांधी हॉस्पिटल में 41 अफराद में से 12, उस्मानिया हॉस्पिटल में 90 में से 52, जबकि एरागड्डा मेंटल केयर हॉस्पिटल में 73 में से 23 अफराद के नताइज मुस्बित आए। हुक्काम के मुताबिक मंशियात के इस्तेमाल में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि माहिर नफ्सियात की जानिब से इन्हें नशे के मुज़ीर असरात में और बाज़ आबादकारी की अहमियत से मुतालिक काउंसलिंग भी फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वैभव रंगनाथ गायकवाड़ ने कहा कि पुलिस मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और नौजवानों से अपील की गई है कि नशा से दूर रहकर महफूज और सेहतमंद माशरे के क़याम में ताउन करें। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में एक खातून ने फुटपाथ से एक 6 महीने के बच्चे का अगवा कर लिया था, जिसे पुलिस ने 48 घंटों में दस्तयाब करवा लिया। कहा गया है कि खातून ने अपनी एक लाऔलाद रिश्तेदार को बच्चा देने के लिए इसका अगवा किया था। सोरारम पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को बरामद कर लिया और जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के अरकान ने नारायणा मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल के करीब पहले देखभाल की और इस बच्चे को अगवा करने का मनसूबा बनाया। जब बच्चा, माँ और दूसरे लोग फुटपाथ पर सो गए थे तो उन्होंने इस बच्चे को वहां से उठा लिया और बाइक पर फरार हो गए। कहा गया है कि यह बच्चा राजेंद्र नगर इलाके से दस्तयाब करवाया और इसकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 नाबालिग और 2 बालिग भी शामिल हैं। రాత్రి యువతలకు కూడా వచ్చి జైలు ఊపితే అవతల నుంచి బైక్ తీసుకుని ఇంకోటి వచ్చిండు. ఆ బైక్ తీసుకొని వచ్చిన ఆయన బైక్ యువతలు ఉన్నోనికి ఇచ్చి వాడు వచ్చి పిల్లలు ఎత్తుకొని బండి మీద కూర్చుంటే వీడు యువతలు ఉన్నోడు బండి నడిపిస్తుండు. ఆ బండి స్టార్ట్లో పెట్టి నడిపిస్తుండు. వీడు ఎక్కిండు, పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఆడి ఫీల్డ్లో తీసుకోపోయిండు. అనుకుంటే అప్పుడు 5 నిమిషాలు కూడా కాలేదు, మేము వండుకొని బండి మీద వచ్చిరంట. మా పెద్ద కూతురు ఎత్తుంది, మమ్మీ పాపను ఎత్తుకోతురు అంటే అప్పుడు ఎంబడి లేచేసరికి బండి వాళ్ళు దంచుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఎంతమంది వచ్చారు? 2 వచ్చారు. ఏ టైంలో జరిగిందమ్మా? 2:30-3 గంటల మధ్యలో. आदिलाबाद में जिस्मानी माजूरी के बावजूद गैर मामूली अज़्म और हौसले का मुजाहरा करते हुए 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म साई चरण को जिले कलेक्टर राजशीशा ने मुबारकबाद पेश की। साई चरण ने एक बरखी हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, ताहम उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी तालीम जारी रखी और SSC इम्तिहानात में 417 नशानात हासिल किए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि साई चरण की कामयाबी जिले भर के तलबा के लिए एक अजीम मिसाल और तहरीक है, क्योंकि मजबूत इरादों के सामने कोई माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने तालिब इल्म के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार करते हुए इसकी जद्दोजहद और अज़्म को काबिल तलक़ीद करार दिया। आदिलाबाद में मदरसा मदीनतुल बनत डालडा कंपनी के ज़ेरे एहतमाम सालाना जलसा तकमील बुखारी शरीफ निहायत रूहानी व तालीमी माहौल में मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना शेख अय्यूब अशाती ने फरमाई। इस मौके पर बुखारी शरीफ की तकमील अमल में आई, जबकि मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना फ़िरोज़ ख़ान अमरावती ने तालीम निस्वां की अहमियत पर ख़ुताब करते हुए कहा कि दीनी तालीम ख़वातीन में शऊर और सालेह माशरे की तामीर में कलीदी किरदार अदा करती है। जलसे की निज़ामत मौलाना तौहीद खान अशाती नायब नाज़िम मदरसा ने अंजाम दी, जबकि मदरसे के मोहतमम हाफिज अफरोज़ खानम मसाबिही नाज़िम हाफिज अब्दुल अज़ीम और मौलिम मौलाना फ़हीम अशाती की निगरानी में तकरीब कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस साल 19 तालिबात ने आलिमा व मौज़नीन कोर्सेस मुकम्मल करते हुए असनात हासिल किए, जबकि इनकी हौसला अफजाई के लिए सरपरस्तों में किताबें, तहाइफ, तौसीफ़ी असनात और मोमेंटोस तकसीम किए गए। जलसे में उलमा, तलबा, सरपरस्तों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर।
नरेंद्र मोदी 10 मई को पहुंचेंगे तेलंगाना। सिकंदराबाद में बड़ा जलसा मुतवक्के, तैयारियों में तेजी। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव की परेड ग्राउंड रैली को कामयाब बनाने की अपील। हेल्प डेस्क सेंटर से करें इस्तीफादा। एसआईआर को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अवाम से अपील। मजलिस के हेल्प डेस्क सेंटर्स पर दस्तावेजात की जांच और रहनुमाई का अमल तेज। तेलंगाना हज कमेटी से आज़मीन हज के 10 काफिलों की हुई रवानगी। 4000 से ज्यादा आज़मीन मक्के मुकर्रमा पहुंचेंगे। मशाइखीन, आज़िम और उलमा ने किया मुखातिब। चीफ मिनिस्टर के काफिले ने मामूल की ट्रैफिक के दौरान ही किया सफर। शमशाबाद एयरपोर्ट से वापसी के दौरान ट्रैफिक को रोका नहीं गया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल। बीआरएस रुकने असम्बली पी कौशिक रेड्डी के रिमार्क्स पर तनाजा। ड्रग टेस्ट करवाने रेवंत रेड्डी और बंडी संजय को चैलेंज। बीजेपी कारकुनों ने कौशिक रेड्डी के ऑफिस पर मचाई तोड़फोड़। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।